Is Matter Around Us, Chapter 2, Class 9, CBSE Science, Part 2 is present today. We have discussed in the Part 1 about the classification of matter, elements, compounds and mixtures, type of mixtures, then true solution, colloidal solution, suspension, Tyndall effects and saturated solution. If you want to see all these, please visit the previous video. In this chapter or in this video, we are going to discuss about some new and some more topics of this is matter around us. So, shall we start? First of all, the concentration of a solution. What is the concentration of a solution? The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solvent or a solution. Means the concentration of solution can be expressed as amount of solute divided by amount of solvent, or we can say it amount of solute divided by amount of solution. Now the concentration of a solution can be expressed as mass by mass percentage or as mass by volume percentage also. So there may be two different equations for these four. First one, the mass by mass percentage of a solution. Then it will be mass of solute, then mass of solution into 100. Then if we want to find out the percentage of mass by volume, then we have to take the mass of solute upper side and the volume of solution and multiplied by 100. So we will get mass by volume percentage of a solution. Next is separating components of a mixture. How to separate the components in a mixture? So the components of a heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving, filtration. That all we have discussed in earlier classes, also in class 7th. Sometimes special techniques are used to separate the components of mixtures like evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, it's coming again, sorry, and chromatography, distillation and fractional distillation also. So these are some more techniques through which we can separate the components of a mixture. Next, first one, out of these we will discuss one by one. The first one is evaporation. This method is used for separating a volatile component or means solvent from a non-volatile component, that is solute, by heating the mixture. Means ऐसे मिक्सचर को हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं जिनमें से एक जो है वो इवेपोरेशन हो सकता है एंड द अदर वन इवेपोरेट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, इंक इज मिक्सचर ऑफ ए डाई एंड वाटर. इंक जो है एक डाई का और वाटर का मिक्सचर होता है. इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, द वाटर इवेपोरेट्स एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश. होगा क्या, जो वाटर जो है वेपर के रूप में मूव हो जाएगा अपर साइड में, और जो डाई इंक में बची हुई थी वो एट द बॉटम ऑफ द जो भी हमने लिया है उसमें रह जाएगी, डिश में रह जाएगी. Similarly, we can separate a mixture of salt and water, or a mixture of sugar or water also can be separated by the same process, that is called evaporation. Okay, next. Here it is centrifugation. The method of separating denser particles. Keep in mind, denser particles and lighter particles from a mixture by using a centrifugation machine or centrifuging machine is called centrifugation. Centrifugation machine in earlier days, it was very common for everybody at home.
people were using to bring out the makhan from the curd. Okay, for example, if we take some milk in a centrifugation machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because the cream is less denser than the milk. So जो the lesser denser वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेपरेट इससे हो जाता है. नेक्स्ट, डिकेंटेशन एंड filtration, both method can be used together to separate such solution in which the solvent and the solute are not properly solved in each other. This method is used for separating a mixture of immiscible liquids. Yes, correct. Immiscible liquids means those liquids which cannot mix each other. So liquids separate into different layers depending on their densities. The higher density liquid will be in the lower side and the lower density liquid will be in upper side. For example, if we take a mixture of kerosene oil and water in a separating funnel, it forms separate layers of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock. Here it is, stopcock. After the water flows out, the stopcock can be closed. जो stopcock है, ये जब वाटर नीचे निकल जाएगा तो उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम क्लोज कर देंगे. सो केरोसिन जो है वो अपर पार्ट में जो है वो सेपरेट रह जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट, दैट इज सब्लिमेशन. This method is used to separate a mixture of sublimable components. Sublimable components, do you know? If an object on heating converts directly into gaseous state from the solid state, it is called sublimable component. Got? From a non-sublimable component by heating the mixture. इसमें होगा क्या, जो सब्लिमेबल कंपोनेंट है, जो सब्लिमेबल कंपोनेंट को इस तरह समझें जैसे आपका कपूर है, नेफ्थलीन है, तो इनको क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये सीधे सॉलिड से और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फर्स्ट एंड देन कन्वर्टिंग इनटू गैसेस स्टेट. सो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं, उनको बोलते हैं हम सब्लिमेबल. और ये जो मेथड, जिसकी मेथड के थ्रू हम उनको सेपरेट करते हैं, ये कहलाती है सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल, इफ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज हीटेड, द अमोनियम क्लोराइड सब्लिम्स. अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा. एंड कैन बी कूल्ड एंड सोलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड द साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. होगा क्या, जब सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हीट अप किया जाएगा तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिम हो जाएगा. सब्लाइम होकर वो अपर साइड में जाएगा. वहां पर हम उस सरफेस एरिया को थोड़ा कूल डाउन करके उसे अगेन सॉलिड स्टेट में रिसीव कर सकते हैं. और जो कंटेनर हमने लिया जिसमें हमने गर्म किया, जैसे चाइना डिश, तो उसमें हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर और ए ब्लॉटिंग पेपर. यानी कलर कंपोनेंट्स को किसी लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से ये तरीका यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, put a drop of ink near one end of a strip of filter paper. हम एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर के वन एंड पर, जैसे यहाँ पे हमने रखा, हमने एक ड्रॉप किसकी डाल दी, कलर की या कोई एक इंक की डाल दी हमने. एंड डिप द एंड ऑफ द पेपर इन ए टेस्ट ट्यूब. और इस टेस्ट ट्यूब में इस पेपर की जो एंड है उसको डिप करेंगे. Ink
Okay, ink is a mixture of two or more colored components. Ink एक्चुअली में है क्या, ये दो या ज्यादा कलर का एक मिक्सचर है. The components the component which is more soluble in water rises faster and gets separated. ऐसे कंपोनेंट जो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल हैं वो क्या होंगे, पहले ही इसमें सॉल्व होकर डिजोल्व होकर और ऊपर उठ जाएंगे, और जो बाकी जो धीरे धीरे या जो कम सोल्यूबल होते हैं वो बाद में होंगे. तो इससे एक लेयर बन जाएगी, हमें एक स्ट्रिप में एक स्पेक्ट्रम मिलेगा. ठीक है, तो ये है क्रोमेटोग्राफी, कलर्स को सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. This method is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors. इसमें क्या होता है, वेरी इजी, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर का हमने सुना होगा, दैट इज वही है डिस्टिल वाटर. डिस्टिलेशन से हम उसको गेन करते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन सबसे पहले देखते हैं. इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स having sufficient difference in their boiling point. यानी ऐसे दो मिक्सचर और ऐसे दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में एक सफिशिएंट गैप हो, सफिशिएंट डिफरेंस हो, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन जानते हैं ना, एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड इन ए डिस्टिलेशन apparatus. The acetone which has a lower boiling point, एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, देन वाटर, सो वो पहले ही क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, एंड कूल्स, और बाद में वो बाहर आकर यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कंडेंसर में, एंड कंडेंसेस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर. और इस टाइप से हम एसीटोन को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. जब तक वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक एसीटोन पूरा का पूरा वहां से बॉइल होकर के और रिमूव हो चुका होता है. नेक्स्ट इज फ्रैक्स. वो तो हमारा था सिंपल डिस्टिलेशन. अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Fractional distillation is used for separating a mixture of two or more miscible liquids whose differences in boiling point is less than 25 Kelvin. तो यहाँ ऐसे लिक्विड्स लिए जाते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो ओनली 25 केल्विन ही होता है या उससे कम होता है. सो इसमें सेपरेट करने में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा चीजें तैयार की जाती हैं. The apparatus used for fractional distillation is similar to that used for simple distillation except that a fractionating column, यहाँ पर एक fractionating column ऐड कर दिया जाता है. बस यही डिफरेंस होता है सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. यहाँ पर क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे तैयार किया जाता है. इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर. डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और ये है हमारा कंडेंसर जो कूल डाउन करता है बाद में. इनके बीच में एक यहाँ पर ये फ्रैक्शनिंग कॉलम यहाँ पे सेट किया जा रहा है, ये है फ्रैक्शनल. द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज ग्लास बीड्स. इसमें क्या होती है, ग्लास की बीड्स होती हैं, विच इंक्रीज द सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस. इसमें क्या करती हैं, ये जो ग्लास बीड्स होती हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे जो लिक्विड है वो जल्दी से कूल डाउन और कंडेंस होता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर एसेट्रा. तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज कहाँ कर रहे हैं, एक तो पेट्रोलियम में, और दूसरा कहाँ यूज कर रहे हैं हम, गैसेस, एयर में से, एयर मिक्सर में से गैसेस को लेने के लिए या सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर.
Air is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation. Air के जो components हैं like CO2, oxygen, nitrogen, helium और argon, whatever जो gases जो भी हैं, जो air के mixture हैं, उनको separate करने के लिए fractional distillation का use किया जाता है. Air is compressed by increasing. ध्यान दीजिए, increase करने से, compress करने से और प्रेशर इंक्रीज करने से वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कूल, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा. बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड. गॉट इट? एयर को लिक्विफाइड करने के लिए क्या किया जाता है, दो चीजें करनी पड़ती हैं. एक तो क्या किया जाता है, उस पर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है. सेकंड थिंग क्या किया जाता है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है. यानी प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा. सो हमें लिक्विड एयर मिलेगी. द लिक्विड एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप. अब लिक्विड एयर को गर्म होने के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी उसको गर्म होने दिया जाएगा. स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. वो कहाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉलम है उसमें धीरे धीरे इस जो हमने लिक्विफाइड जो एयर की है उसको धीरे धीरे गर्म होने देंगे. Then the different components separate at different heights depending on their different boiling points. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हुए अलग अलग हाइट पर उनको सेपरेट हो जाते हैं. कहाँ होंगे ये सेपरेट होंगे, वो हमारे वो चैम्बर जो हमने बनाया, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर या उसको कहें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. यहाँ पर ये सब सेपरेट हो जाएंगे. तो देखिए, एयर compressed and cooled by increasing pressure and decreasing temperature. Then we get a liquid air. Then we allow the liquid air to warm up slowly in fractional distillation column. Then the gases get separated at different heights. So boiling point in centigrade it is given. Oxygen is 183 degrees Celsius. Argon is 186. Nitrogen has 196 degree Celsius. So ये कुछ boiling points gases के हैं, बड़े important हैं. You can एग्जाम के लिए बहुत important रहेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो, ये क्रिस्टलाइजेशन और एक नई चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है. ये भी सेपरेशन में यूज होती है. सो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, अगर उसको प्योर फॉर्म में गेन करना है तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ऑब्टेन करने के लिए उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट. क्रिस्टलाइजेशन से हम प्योर कॉपर सल्फेट गेन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हम कॉपर सल्फेट को प्योरली गेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं. डिसॉल्व अबाउट कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा दे रखा है इसमें. डिसॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. पानी की कम से कम जो अमाउंट है उसमें इसको डिसॉल्व कर लीजिए. और डिसॉल्व कम अमाउंट इसलिए इससे जल्दी से इसका इवेपोरेशन हो सके, क्रिस्टलाइजेशन हो सके. फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज. अब क्या करें, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए इस मिक्सर को क्या करना है, हमें फिल्टर करना है. इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन ए चाइना डिश. अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को चाइना डिश में रख के गर्म करेंगे तो ये इवेपोरेट होगा. टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इससे हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें और ज्यादा कॉपर सल्फेट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते. कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कवर द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल डाउन. प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर नाउ फॉर्म्ड. तो इससे हमें क्या मिलेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं वो मिल जाएंगे. इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस.
हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सो प्योर सब्सटेंसेस एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यानी एलिमेंट्स ऐसे बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसे और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्स 3 टाइप्स के हैं। दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। उनमें से मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटल्स। मेटल्स प्रॉपर्टी, दे हैव लस्टर। फर्स्ट थिंग इज all the metals have a shining that is called luster। they are malleable, वो malleable हैं, and ductile। और क्या है वो? ductile means उनसे तार बनाए जा सकते हैं, चद्दर उनसे बनाई जा सकती है। they are good conductor of heat and electricity। सभी जो metals हैं वो heat and electricity के क्या होते हैं? good conductor होते हैं। they are sonorous, यानी उनमें जैसे अगर चोट लगाते हैं तो आवाज आती है, सोनोरस होती है, यानी कि घंटी की सी आवाज आती है उनमें। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एसेट्रा एंड सम मोर। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं देखिए। दे डू नॉट हैव लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होता, मीन्स एक शाइनिंग जो होती है, जो मेटल शाइनिंग वो नहीं होती। दे आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल, उनको चद्दर और वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, दे आर कंडक्टर बट वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट सोनोरस, और उनमें एक जो साउंड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एंड एसेट्रा। नाउ वी आर कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आर एलिमेंट्स which show some properties of metals and some properties of non-metals। यानी ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन मेटल्स की होती हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहाँ पे सिलिकॉन जो आया तो आपने जो मेमोरी कार्ड देखे हैं, जो चिप्स देखी हैं, वो सिलिकॉन से बनती हैं। और इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये मेटेलॉइड्स, इस मेटल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ नॉन मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio। यहाँ पे 2-3 करनी है। फर्स्ट वन, ये कंपोज्ड है 2 और मोर एलिमेंट्स से। ये एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हैं और इनका रेशो जो है वो फिक्स होता है। ठीक है। Differences between mixers and compounds। Now we are going to discuss about the differences between mixer and compounds। It's a very important topic and it is the last topic to discuss in this chapter। Mixture, it is composed of 2 or more elements or compounds mixed together। मिक्सचर कैसे बनेगा? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स को एक साथ मिला दिया जाए, सो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? उनका कोई किसी प्रकार का कोई फिक्स्ड रेशो नहीं हो तो वो मिक्सचर कहलाएंगे। कंपाउंड्स क्या होंगे? It is composed of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio। ठीक है। The composition of the component is in any ratio। इनका जो composition होता है, जो components जो भी हैं, जैसे हमने वाटर में हमें मान लो बनाना है लेमन जूस, we have to make, then we can take any amount of sugar, we can take any amount of lemon juice and we can take any amount of water। So it is not fixed, we can take it as per our taste। But in compound the composition of the components is in a fixed ratio। But जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बने हैं उनका एक फिक्स रेशो होता है।
देन मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। मिक्सचर जो है वो उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे हमने लेमन जूस बनाया तो उसमें लेमन का भी टेस्ट है, वो श्योर होता है, उसमें शुगर का भी टेस्ट होता है, वो स्वीट होती है ना। तो ये सब कंपोनेंट्स, जैसे भी जो भी कंपोनेंट्स हम उसमें डालेंगे उसी का टेस्ट उसमें हमें फील होगा। बट इन कंपाउंड इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट्स। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो टुगेदर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो किस किस से बना है, H2 और ऑक्सीजन से बना है। दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है देन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सो लास्ट वन इज द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स इन ए मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक कॉमन फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ए फिजिकल मेथड्स। टू सेपरेट दीज components separately to get, we have to use some special chemical methods. Okay, so these were the properties of mixture and compounds. Now here comes the end of the lesson. इस लेसन में हमने इतना ही डिस्कस किया है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये जो सीरीज है इसके सीरीज के बिना आपको पिछली चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। Okay, all the best.